Hello students, good morning. Students, today is 22nd August. Students, I have taught you exercise 11 till question number 2nd. Okay. So today I want to start question number 3rd of exercise 11 of chapter 5th. So look here. In the question 3rd it has been given Chaya cuts 3 meter of cloth into strips of 1/4 meter each. It means Chaya ने 3 मीटर क्लॉथ को स्ट्रिप्स में कुछ उसके जो पीसेस थे वो इन्होंने काटे, कितने 1/4 मीटर का एक पीस था. हाउ मेनी स्ट्रिप्स डज शी कट, यानी उसने टोटल कितनी स्ट्रिप्स को कट किया. इट मीन्स टोटल जो हमारे क्लॉथ की लेंथ है वो क्या है 3 मीटर है एंड ईच स्ट्रिप की लेंथ क्या 1/4 मीटर. सो लुक हियर हाउ कैन यू सॉल्व इट. रिमेंबर स्टूडेंट्स, in the statement wise question, so it is compulsory to write the statement. So here you will write here total length of cloth is equal to 3 meter. Okay, size of each strip is equal to 1/4 meter. Okay, so here it has been asked how many strips does she get. So here you will write Chaya get strips is equal to 3 divided by 1/4 what meter. Okay, so students, in the previous class I have already told to you division की जगह क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई का साइन होगा. So here you will put 3 into एंड मल्टीप्लाई के साइन के बाद जो हमारा आगे का फ्रैक्शंस होगा या जो नंबर दिया होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 1/4 का बेटा क्या होगा 4/1. सो 3 के नीचे कुछ नहीं तो बेटा क्या मानते हैं 1. सो न्यूमरेटर का आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. 3 4 जा 12, 12/1 बन जा 1. सो 12/1 is equal to 12. Here you don't put the meter because स्ट्रिप्स नंबर हैज बीन टोल्ड. सो मीटर की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, मीटर हटा दीजिए आप यहां से. ठीक है, सो 12 वॉट स्ट्रिप्स. सो हियर यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू छाया गेट स्ट्रिप्स इज इक्वल टू 12. यानी छाया को कितनी स्ट्रिप्स मिली 3 मीटर के क्लॉथ में. ईच स्ट्रिप की साइज क्या थी 1/4 मीटर. सो टोटल स्ट्रिप्स इज 12. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. Now students, look question number 4. In question number 4 it has been given on her birthday Meenu bought 3 whole number 1/2 kg sweets and packed them in packets containing 1/4 kg each. It means अपने बर्थडे पर मीनू ने 3 whole number 1/2 किलोग्राम मिठाई खरीदी और पैक देम और उन्हें पैक कर दिया. कितने पैकेट्स में 1/4 kg ईच. हर पैकेट में 1/4 kg था मिठाई. ओके, टू गिव एज रिटर्न गिफ्ट टू हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को रिटर्निंग गिफ्ट देने के लिए. हाउ मेनी पैकेट्स डिड शी मेक, उसने टोटल कितने पैकेट्स बनाए. सो लुक हियर. सो हियर यू विल राइट टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू total quantity of sweets is equal to 3 whole number 1/2 kg. Okay, and each packet containing, here you will write each packet contain sweets is equal to how much 1/4 kilogram, 1/4 kg. So after that it has been asked about how many packets did she make. So here you will write Meenu make total packets is equal to 3 whole number 1/2 divided by 1/4. Okay, so students, you know about that this is in whole number, so you will convert it in the improper fraction. So 2 से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा. 2 3 जा 6 and 6 plus 1 7. So here you will write 7/2 divided by 1/4. Clear students. Then after that 7/2 you have noted down as it is and इधर साइन रिलेट्स किससे है डिवीजन से. So here you will convert the sign, change the sign in the multiplication and 1/4 will be done as like a reciprocal 4/1.
सो न्यूमरेटर का आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से. सो 7 into 4 28, 7 4 जा 28 अपॉन 2 1 जा 2. So when you will divide 28 from 2, so you will get 14. Okay, so you will write the answer. Answer is equal to Meenu make 14 packets. So that is your answer. If you have any doubt, then students, you can ask the query with me. Okay. Now students, question number 5. In question number 5, the question is the cost of 2 whole number 1/2 kilogram potatoes is rupees 30. What is the cost of 1 kg potatoes? So students, remember, आपको 2.5 kg पोटैटो की कॉस्ट दी है, आपको 1 kg पोटैटो की कॉस्ट निकालनी है. सो ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ज्यादा दिया हो, कम पूछे तो डिवाइड करते हैं. सो दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टूडेंट्स, योर ऑल द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5, चैप्टर नेम इज फ्रैक्शंस, हैज बीन फिनिश्ड. आपके एक्सरसाइज 11 की फिनिश होने के बाद आपके चैप्टर 3 के सारे एक्सरसाइज खत्म हो गए हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट मेंटल मैथ्स. ओके, इन मेंटल मैथ्स द क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन गिवन 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 6. सो लुक द सॉल्यूशन अबाउट इट. Here I will write it 1/2 is equal to question mark upon 6. So students, question mark की जगह हम इसे मान लेते हैं x. So 1/2 is equal to x upon 6. Clear students? Now how can you solve it? It will be solved by the cross multiplication. Students, हमने आपको cross multiplication पढ़ाया है. इक्वल टू के पहले फ्रैक्शन जो दिया होगा उसके न्यूमरेटर से हम इक्वल टू के बाद के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. यानी इक्वल टू के पहले वाले फ्रैक्शंस को आप इक्वल टू के बाद वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे. इट मींस पहले का न्यूमरेटर एंड दूसरे का डिनोमिनेटर. एंड सेम पैटर्न यू विल फॉलो, फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर. ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई. सो 2 into x इक्वल टू 1 into 6. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर इक्वल टू के पहले हमने आपको पढ़ाया है, प्लस दिया है, तो इक्वल टू के बाद जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस लिखा होता है तो प्लस होता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई दिया हो तो डिवाइड करते हैं. सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी इट 2 into x हैज बीन गिवन. सो x क्या है? एल्जेब्रिक नंबर है. सो हम इसको यहीं रख देंगे. x इक्वल टू 1 into 6/2. हमारा क्या होगा? 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में, जब ये इक्वल टू उधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा. So x इक्वल टू 1 into 6. इट मीन 6 1 जा 6 अपॉन 2. सो जब आप 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, सो आफ्टर दैट यू हैव गॉट 2 3 जा 6. इट मीन्स x इक्वल टू 3. स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? 6/2 दिया है. सो हमने जब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, सो 2 3 जा 6. सो x इक्वल टू 3. सो x हमने क्या माना था यहाँ? क्वेश्चन मार्क वाली फिगर. सो हियर यू विल राइट, so after that you will write answer is equal to 3. Okay students, so you can write it here also. You can write the complete answer. So here you have got x, so answer you will write as like this: 1/2 is equal to 3/6. आप इसे पूरा लिखिए. ठीक है, पूरा लिखेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 3 मानी थी एंड x क्या था बेटा? x यहाँ दैट इज क्वेश्चन मार्क. सो हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x मानी एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट x इक्वल टू 3. सो यू विल राइट इट हियर एज लाइक दिस 1/2 एज इट इज लिखेंगे आप. देन क्वेश्चन मार्क की जगह यू विल राइट 3/6. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मेंटल मैथ्स. इन दिस द फ्रैक्शंस हैज बीन गिवन 2/3 इक्वल टू 6 अपॉन क्वेश्चन मार्क. सो हियर वी विल राइट 2/3 एज इट इज इक्वल टू 6 अपॉन x. हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया. सो सेम पैटर्न एज लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल फॉलो. न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में. स्टूडेंट्स, जो आपका एल्जेब्रिक नंबर होगा उसको आप इक्वल टू के पहले रखा करो. इट मीन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड आफ्टर दैट इक्वल टू के बाद अपने राइट हैंड साइड में आप वो नंबर रखोगे जिसमें कोई भी एल्जेब्रिक नंबर नहीं है. एल्जेब्रिक नंबर मीन्स A to Z में अगर कुछ भी आता है, सो x दिया है, सो यू विल राइट इट हियर 2 into x.
equal to 3 into 6. So students, after that you will follow the same pattern as like a question number 1. Here 2 से हमारा x में मल्टीप्लाई हो रहा है. So अगर ये equal to के राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. So here you will write x equal to 3 into 6 upon 2. Okay. So equal to 3 6 18, 18 upon 2. x equal to 9. So x क्या हमने माना था, क्वेश्चन मार्क. So here you will write the complete answer. Answer fractions has been given 2 by 3 equal to 6 by 9. So here you will write 2 by 3 equal to 6 by 9. सिर्फ हमने जहां ये क्वेश्चन मार्क दिया था वहां हमारा ये x की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स लुक द क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, it has been given what is 4 upon 8 in the lowest term. It means 4 upon 8 lowest term में क्या होगा. So look here, 4 upon 8 you can see it students. हमने आपको बताया हुआ है लोवेस्ट टर्म में जब भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो सो आपको कोई ऐसा नंबर देखना होता है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं. सो 4 अपॉन 8 में 4 किससे डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 8 भी 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8. So your answer is, you will write the answer is equal to 1 upon 2. Clear students? Now students, question number 4. In question number 4 it has been given arrange in ascending order. आपको इसे क्या ascending order में convert करना है. So students, I have already taught to you about that. In the ascending order, when you want to convert any type of the fractions in the ascending or descending order, so first is your duty. आपको ये देखना होगा कि हमारे डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल नहीं है सो विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम यू विल इक्वलाइज इट. सो हियर द इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 5. हियर इन द सेकंड फ्रैक्शन 9, इन थर्ड फ्रैक्शन 7 एंड इन द लास्ट फ्रैक्शन 3. सो ऑल द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल. सो फर्स्ट इज योर ड्यूटी टू इक्वलाइज इट विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम. सो लुक हियर इन द रफ कॉलम. Denominators are 5 9 7 3. 5 9 7 3. So students, 3 first you will divide 5 as it is. 3 3 is 9, 7 and 3 1 is 3. Again 3, 5 you have written down as it is. 3 1 is 3, 7 and 1. Then 5 1 1 7 and 1. Then after that 7 1 1 1 1. So your LCM is equal to 3 into 3 into 5 into 7. 3 3 is 9, 9 into 5 into 7. 9 5 is 45, 45 into 7. So you will multiply 45 into 7. 7 5 is 35. 5 here and 3 will be carry forward. 7 4 is 28. 28 plus 3, 31. So here you will write the LCM 315. So now look here, 315 is the LCM. So now listen, आपको करना क्या है, जितने भी फ्रैक्शन है सबके डिनोमिनेटर से आप एलसीएम के नंबर में डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके. सो लुक हियर इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 5. सो 5 से आप 315 में डिवाइड करोगे. लुक हियर 5 then 315, 5 6 are 30, then 1 and 5, 5 3 are 15. So here you have got 63. 63 जब हमने 5 से 315 को डिवाइड किया देन आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर इज टू 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 63 को. So 63 into 2, 2 3 are 6, 2 6 are 12, so 126. So here you will write 126 comma semi comma. Another fraction has been given 2 by 9. 9 से आप 315 में डिवाइड करोगे. So 9 then 315. 9 3 are 27. Then 31 minus 27 4. Then 5. Okay. 9 5 are 45. Okay students. Now you can see it here. 35 you have find out and in the numerator the number has been given 2. So 35 into 2 is equal to 70. Clear students? Now in the third fraction that denominator is 7. 7 से आप 315 में डिवाइड करोगे. So look here, 7 4 are 28. Then 31 minus 28 is equal to 3. Then 5 you have noted down. 7 5 are 35. Okay. So you have got the answer after division 45.
So you will see it here. You can see it here. The numerator is 2. So 45 into 2 is equal to 90. Clear, students? Now in the last fraction, the fraction is 2 by 3. So you will divide 315 with the help of the 3. 3 1 ja 3. Then 1. It will not be divided. So here you will put 0. Then 5. 3 5s are 15. So here you have got the answer 105. Here the numerator is also 2. So 105 into 2 is equal to 210. Okay. So here you will write 210. Clear, students? So in the question it has been asked about that. Arrange in ascending order. So here you will write in ascending order. In ascending order. First you will write ascending order or in the that number. Ascending means छोटे से बड़ा. So here you can see it. That number is the smallest. So here you will write 70 upon 315. Okay. 315 क्या है? LCM है सबका, तो सबका डिनोमिनेटर क्या है? 315. Then after that 90. So 90 upon 315. Then third is 126 upon 315. Then after that last 210 upon 315. बट स्टूडेंट्स रिमेंबर ये आपका आंसर नहीं है. आपको आंसर असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखना है वो आपको इसी फ्रैक्शंस को लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया है. ओके. सो नाउ वी कैन चेक इट. फर्स्ट हमने क्या लिखा? 70 अपॉन 315. इट मीन्स दैट इज योर सेकंड फ्रैक्शन. सो सेकंड फ्रैक्शन हियर इट हैज बीन गिवन 2 अपॉन 9. सो देयरफॉर 2 अपॉन 9. ओके. देन आफ्टर दैट 90 upon 315. 19 upon 315 is your third fraction. So here you will write third fraction is 2 upon 7. So here you will write 2 upon 7. Then after that 126 upon 315 you have written here. 126 upon 315 is the first fraction. Here first fraction has been given 2 upon 5. So 2 upon 5 you will write here. Okay, students. Now in the last fractions you have written 210 upon 315. That is the fourth fraction, and in the question the fourth fraction is 2 by 3. So here you will write 2 by 3. So this is your answer. So you can write the answer in ascending order. 2 by 9, 2 by 7, 2 by 5 and 2 by 3. Clear, students? If you have any doubt, then you can also ask the query with me. Now students, question number 5. Question number 5 has been given. What is 15 whole number 2 by 3 into 1? So look here, how can you solve it? 15 whole number 2 by 3 into 1. So first, this is your whole number. You will convert it in the improper fraction. So improper fraction से लिए आप क्या करोगे बेटा? डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे. देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दैट आंसर यू विल गॉट. आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिलेगा आप उसे 2 में ऐड कर लोगे, यानी न्यूमरेटर में ऐड कर लोगे. सो 15 इंटू 3 इक्वल टू 45. 45 प्लस 2 इक्वल टू 47. 47 अपॉन 3 इंटू 1. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का नंबर होता है तो आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है. 1 के नीचे कुछ नहीं है. सो इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट हियर 1 ऑल्सो. सो 47 इंटू 1 इक्वल टू 47 and 3 into 1 is equal to 3. So here students you can see it. 47 upon 3 you have got it. Here the numerator is more than the denominator. So you will convert that fraction in the whole number. Look here, how can we convert it in the rough column. So 3 and 47. आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के नंबर से आप डिवाइड करोगे. So 3 1 जा 3. 4 minus 3 is equal to 1 and 7 you have noted down. 3 5 जा 15. So 17 minus 15 is equal to 2. So here you will write 15 whole number 2 by 3. So you will write 15 whole number 2 by 3. जो आपका ये नंबर आएगा ये डिवाइड के बाद ये आपका होल नंबर होता है. रिमाइंडर न्यूमरेटर होता है. जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो दैट इज डिनोमिनेटर. सो हियर यू विल राइट 15 होल नंबर 2 by 3. दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू 15 होल नंबर 2 by 3. क्लियर स्टूडेंट्स? So students, आज की क्लास में इतना ही. If you have any doubt, then you can ask the query with me in the WhatsApp. Okay, students.